Management of Baba Farid College of Engineering and Technology, Bathinda, and the head of the department, chairman, and all faculty members who are here. So today, as the topic chosen for this particular FDP is the Industry 4.0 Challenges, Opportunities in Industry and Academia. So in India, so there are various industries, as you may have learned in last 2 to 3 days about the various industries 4.0. So today I am going to talk on the agriculture, because in India most of the products, either the food industry, either many of the industries are depending upon the agriculture. So as far as my experience in the agriculture, so CDAC is helping the India to go towards this Industry 4.0 in the agriculture domain. So as my topic is the use of AI and IoT which transforming the future of the farming. So this is the topic for my talk. So before that, I would like to give a short introduction of my company, or you can say the organization. It's a government organization, comes under the Ministry of Electronics and Information Technology, New Delhi. So CDAC started with the mission to build the indigenous supercomputing facility or supercomputing capacity in 2002. But in 1988, the CDAC established. In 2002, after the merger, CDAC Mohali comes under this CDAC flag. So the CDAC, as you are well aware, that how many of you have heard about the CDAC? Yes. Can you tell me how you know the CDAC? आप कैसे जानते हैं सीडेक के बारे में? सर कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह कोर्स कराती हैं और वहाँ पे सर्टिफिकेट लेवल हायरिंग वगैरह होती है तो ओके तो उसकी वजह से आप जानते हैं, ठीक है. हाँ जी सर. My friend is working there. Okay, your friend is working there. So in 1988 CDAC कैसे start हुआ? I am starting with that journey. So in 1988 India demanded one supercomputer from the US. उस टाइम पे हमारे पास सुपर कंप्यूटिंग नहीं था, और एज आई हैव टुडे चोजन द टॉपिक एग्रीकल्चर. तो उस टाइम के ऊपर क्या था कि मोस्ट ऑफ दी जो हमारी इंडस्ट्री है या मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी हमारी है वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, फुली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर. बट द एग्रीकल्चर फुली डिपेंड्स अपॉन द दिस वेदर. सो वेदर फॉरकास्टिंग जो इक्विपमेंट्स थे और वेदर फॉरकास्टिंग की जो हमारे पास फैसिलिटीज थी इंडिया के पास वो नहीं थी. कभी तो यहाँ पे बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता था और कभी यहाँ पे बाढ़ आ जाती थी. तो अगर वो मौसम को या उस वेदर को हम लोग पहले प्रिडिक्ट कर सकें तो उसकी वजह से हम लोग क्या था कि हमारी जो फसलें बर्बाद होती थी और उसकी प्रेडिक्शन की वजह से जो लॉसेस होते थे उनसे हम लोग बच सकते थे और हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो कर सकती थी. सो एट दैट टाइम गवर्नमेंट ने एक सुपर कंप्यूटर जो है यूएस से डिमांड किया, बट ड्यू टू सम ऑफ द पॉलिटिकल रीजन और मे बी ड्यू टू द वर्ल्ड कंपटीशन उन्होंने वो देने से रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते, ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी हम आपको नहीं देंगे. सो एट दैट टाइम इन्होंने कहा कि हम अपना सुपर कंप्यूटर बनाएंगे. उसके लिए ये सीडैक की जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया सीडैक को कि आप 2 साल के अंदर हमें ये सुपर कंप्यूटर बना के देंगे. तो इन 1990 जो फर्स्ट हमारा सुपर कंप्यूटर था दैट इज परम 8000, तो वो सीडैक ने फर्स्ट टाइम बनाया. और उसके बाद में यूएस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है ऑन द सुपर कंप्यूटिंग. वहां पे हमारा जो सुपर कंप्यूटर था वो इट स्टैंड द सेकंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. So that is the achievement by the CDAC in 1990. And after that we are continuously into the supercomputing and for giving this supercomputing facilities in various domains. So today CDAC is working in the artificial intelligence domain, cyber security domain, agri domain, as well as quantum computing,
सो जितनी जो टेक्नोलॉजी है आपकी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हर डोमेन के अंदर हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारे जो है 12 सेंटर्स हैं, और 12 सेंटर्स जो हैं अलग अलग डोमेन्स में हम लोग वर्क करते हैं। सो दीज आर दी domains in which we are working. First is high performance computing, grid computing, cloud computing, and then multilingual computing and heritage computing. So multilingual computing and heritage computing is more concerned about the languages in the multilingual. So इंडिया के अंदर क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि हर 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर के बाद में जाके हमारी भाषा जो है वो बदल जाती है। So उसके लिए आप जितना गूगल के ऊपर ये ट्रांसलेशन देखते हैं कि हिंदी से पंजाबी में है या इंग्लिश से हिंदी में हम लोग कर सकते हैं, इसके जितने यूनिकोड्स हैं वो हमारी जो पुणे की टीम है उन्होंने पूरे के पूरे डेवलप कर रखे हैं, और वी आर आल्सो गेटिंग द रॉयल्टी फ्रॉम द गूगल एंड अदर दिस इंडस्ट्रीज फॉर दीज यूनिकोड्स। और उसके साथ में है नेक्स्ट जो है हमारा VLSI है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, इसमें हम लोग वर्क करते हैं। एंड इवन इन माय डिपार्टमेंट आई हैव द प्रोजेक्ट दैट इज, अभी गवर्नमेंट का जो मोर फोकस है दैट इज आल्सो ऑन द सेमीकंडक्टर डोमेन आल्सो। सो इन द सेमीकंडक्टर आई हैव वन प्रोजेक्ट दैट इज चिप C2S, चिप टू सिस्टम डिजाइन के ऊपर है। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ECG जो है, आपने देखा होगा कि जब हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं तो मोस्टली जो होते हैं कि ECG करके देखो, तो वो जो ECG है, अभी आपने देखा होगा कि इनबिल्ट जो ECG या वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो ECGs आ रही हैं वो मोस्टली एप्पल की वॉचेस में है या सैमसंग की वॉचेस में, जो काफी महंगी वॉचेस हैं। सो फॉर दैट वी आर डिजाइनिंग वन चिप दैट इज अ ECG चिप। तो वो ECG चिप जब आएगी उसके बाद में हम लोग उसको जो है, जैसे एप्पल की वॉचेस में लगते हैं, तो हम उसको किसी वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस के अंदर लगा के उसको हम लोग यूज कर पाएंगे फॉर दी इमरजेंसी केसेस। मतलब आपके पास लगी हुई है और उसके अंदर पीक आएगी और आपको वो ब्लूटूथ के ऊपर बता देगी कि ये आपका अलर्ट है, आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए। सो लाइक दैट टेक्नोलॉजीज वी आर डेवलपिंग एट CDEC मोहाली। एंड अनदर इज अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। During the COVID, we have developed one this portal that is called eSanjeevani. So eSanjeevani जो हम लोगों ने डेवलप किया है उसके अंदर क्या है कि आप घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपका लोकल यहाँ का कोई डॉक्टर है और वो PGI के डॉक्टर के साथ में कंसल्टेशन करना चाहता है फॉर द ऑपरेशन या अदर किसी चीज के लिए कंसल्ट करना है, डॉक्टर टू डॉक्टर भी है और डॉक्टर टू पेशेंट भी है। सो ड्यूरिंग कोविड जब हम लोगों का घर से निकलना बाहर मुश्किल था, सो एट दैट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया और इसके लिए हमें 50 करोड़ रुपीस उसी टाइम शिफ्ट किए गए कि आप लोगों को ये ऐप डेवलप करनी है और ये घर घर तक पहुंचनी चाहिए। तो उस टाइम के ऊपर डॉक्टर्स ने घर बैठे कई लोगों को एडवाइस दिया। इसमें क्या है, किस तरीके से ऐप का काम करती है कि आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। जब आपका नंबर आएगा एट दैट टाइम यू विल रिसीव ए मैसेज और ए कॉल कि डॉक्टर ऑनलाइन है, आप आ जाइए। तो आपको अपने जो बेसिक हैं कि आपका BP कितना है और ये पैरामीटर जो हैं, अगर आपके घर में BP मीटर है और थर्मामीटर है तो वो सारी चीजें उसके ऊपर आप पहले फिल कर देंगे और डॉक्टर आपसे कंसल्ट करने के बाद में आपको बताएगा कि हाँ ठीक है, ये पैरामीटर्स आपके थे तो आप इसको ये मेडिसिन जो है आप ले लीजिए। सो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। प्रिस्क्रिप्शन जो स्लिप जो होगी वो आपकी ऐप के अंदर आ जाएगी और वो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप जो है ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। अदरवाइज ये होता है कि डॉक्टर हमेशा कहता है कि नीचे साइन किए हो और हैंड रिटन वो चाहिए, लेकिन वो हमारी पूरे इंडिया में वैलिड है। और अभी तक जो है 35 करोड़ कंसल्टेशन इस ऐप के ऊपर हो चुकी है, 35 करोड़। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन सोल्यूशन बना है अभी तक का। और इसके लिए हमें प्रेसिडेंट अवार्ड मिले हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड काफी रिकॉग्निशन मिली है इस प्रोडक्ट की वजह से। एंड एज फार एज द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर कंसर्न, सम ऑफ द faculty members are there and some research scholars are there. So इसके रिलेटेड मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे CDEC मोहाली के अंदर, जैसे इन्होंने कहा था कि कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज कराते हैं। Yes, for the BTech students we are offering summer trainings and industrial trainings. Along with that we are into the domain कि हम लोगों का ये है कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है that is Electronics ICT Academy, under which we are conducting also the faculty development programs at the various institutes to upgrade the faculty knowledge
एंड जो हम लोग कर रहे हैं इंडस्ट्री में या जो हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं वो टीचर्स तक पहुंचे और वो टीचर्स आगे जो हैं उनको स्टूडेंट्स को उसको आगे बताएं और प्रैक्टिकल चीजें बताएं। सो ये हम लोग एजुकेशन में कर रहे हैं। और इसके अलावा एक फ्यूचर प्राइम एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोगों का जो मेन काम है, जो गवर्नमेंट जितनी स्कीम्स निकालती है उन्हें इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें यूज करते हैं। जैसे फ्यूचर प्राइम है, फ्यूचर प्राइम भी बच्चों के लिए है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप लोग इसके ऊपर बिग डाटा हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, एआई हो गई, इसके फ्री कोर्सेज हैं। मेरे ख्याल से 60 की 70 रुपीज के कोर्सेज हैं, वो आप ऑनलाइन कीजिए। उसके बाद में आप उसके कोर्स करने के बाद उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है। पूरा प्रॉपर टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद आपको प्रॉपर उसका मिलेगा। एंड एक और स्कीम है जो कि SC/STs एंड हमारे जो वुमेन कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए है, वो है हमारी WBL, वर्क बेस्ड लर्निंग। मैं इसलिए आप ये सब आपको बता रहा हूँ क्योंकि टीचर्स बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, तो आप लोग ये स्टूडेंट्स तक आगे इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज आल्सो द मिशन ऑफ द गवर्नमेंट कि ये जो स्कीम्स हैं लोगों तक पता लगे। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी यहाँ पे WBL के बारे में पता होगा। सो दिस इज अ वर्क बेस्ड लर्निंग। होता क्या है कि बच्चा इंजीनियरिंग कर जाता है, MCA कर जाता है, BCA कर जाता है, वो करने के बाद भी उसको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। फॉर दैट गवर्नमेंट ने ये कहा कि जितनी हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आइदर CSIO है या CDAC हैं, 12 CDAC हैं हमारे, और अर्नेट हैं, ये सारी जो चीजें हैं वहां पर आपके कितने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट बैठे हैं, तो क्यों ना इन बच्चों को 2-2, 3-3 बच्चों को उनके साथ में लगाया जाए 6 महीने के लिए। तो फिर वहां पे आता है कि ये लोग वहां पे जाएंगे, अगर चंडीगढ़ जाएंगे तो उनका खर्चा कौन उठाएगा। सो फॉर दैट वी आर गिविंग 10,000 रुपीज पर मंथ टू दी स्टूडेंट्स। वहां पे आते हैं, 6 महीने लगाते हैं, पूरा काम सीखते हैं और उसके बाद में फिर उनकी प्लेसमेंट और उसके लिए वो लोग आगे काफी कैपेबल हो जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल लर्निंग वहां पे उनकी हो जाती है। So without more on the CDAC, now come to the our topic that is more related to the agriculture. So ये हमारी इंटरनेशनल प्रेजेंस है। इन कंट्रीज में हमने अभी तक जो है कोर्सेज हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज और ये हैं, और ये लोग हमारे इंडिया में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इनको फंड करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनके कोर्सेज होते हैं। ये हमारे मोहाली में आते हैं और कोर्सेज करने के बाद में अपने अपने कंट्री में चले जाते हैं। So as far as the agriculture innovation is concerned, so agriculture innovation है क्या? Agriculture innovation ये है कि अगर हमें इंडस्ट्री 4.0 को अचीव करना है in the agriculture, so without the intervention of the technology हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। So इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम लोगों को इस पे चलना है। So first is कि why we need this smart agriculture or this innovation in the agriculture. So as you know by 2050 जो होगा हमारा, उसमें forecasted है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 9.8 बिलियन हो जाएगी। So अगर इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अबाउट 25% जो अभी के जो फिगर्स हैं उनसे ऊपर हो जाएगी। तो एट दैट टाइम वी नीड द मोर फूड। बट ड्यू टू द अर्बनाइजेशन मोस्टली क्या है, हमारे शहरों की वजह से जो खेती वाली जमीन है वो सारी की सारी खत्म होती जा रही है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो है खेती में कमी आ रही है। सो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं। उसके बाद में क्लाइमेट का एक अलग से चैलेंज है, लेबर का चैलेंज है, लेबर की शॉर्टेज है, सस्टेनेबल फार्मिंग जो है। तो इसीलिए हमें क्या है कि ये जो IoT है, AI है, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, इनका यूज करके अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ाना है। और लाइक जैसे कि है आजकल वर्टिकल फार्मिंग शुरू हो गई है। पहले खेत इस तरीके से होते थे, अब खेत जो हैं वो बाय बिल्डिंग्स के बीच में लोग आजकल अपनी सब्जियां उगाने लगे हैं। वर्टिकल फार्मिंग है, वर्टिकल फार्मिंग इन द गार्डन्स है, और अपनी छतों के ऊपर सब्जियां हैं। तो वो सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो किस तरीके से आगे इंप्लीमेंट होंगी और उसमें कैसे हम लोग ये AI और ये सारी चीजें लगा के उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं, वो चीजें हैं। सो एग्रीकल्चर इनोवेशन एक सिस्टम है जिससे कि हम लोग इसको जो हमारे टारगेट्स हैं फॉर द प्रोडक्शन वो अचीव कर सकते हैं। इन नेटवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइजेस एंड द इंडिविजुअल फोकसेस ऑन ब्रिजिंग ए न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोसेसेस एंड न्यू फॉर्म्स of the organization into the economic use together with the institution and policies that affect their behavior and performance. So इसमें अगर आप देख रहे होंगे 3 पिलर्स हैं हमारे।
एक जो है हमारे वो है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, और एक है हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, और एक तरफ हमारे आ जाते हैं जो ये आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल। सो हमें क्या है कि गवर्नमेंट को अगर किसानों को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई कीड़ा लग रहा है, कोई डिजीज लग रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पास जाते हैं लोग थ्रू द केवीकेज। तो केवीकेज वाले क्या करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं और वो सारी चीजें हैं वो आगे प्रोफेसर्स को देते हैं जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं। वो लोग उनके सोल्यूशंस बनाते हैं एंड देन दे आर कनेक्टेड टू द इंडस्ट्रीज। लाइक सपोज कीजिए कोई पेस्ट आ गया है तो उसका पेस्टिसाइड बनाना है, तो उसके ऊपर पहले इन्होंने साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद में वो फिर इंडस्ट्री को बोला कि इसका ये सोल्यूशन है, केमिकल सोल्यूशन ये है, इसकी दवाई आप ये बनाइए। फिर वो आगे मार्केट, और उसके अकॉर्डिंग अगर वो मार्केट में जाएगी दवाई, हो सकता है हर किसान ना ले पाए, तो फॉर दैट आवर गवर्नमेंट हैव टू इंटरवीन बिटवीन देम, तो सो दैट कि उसके लिए जो सब्सिडी की स्कीम्स हैं या पॉलिसीज हैं वो चीजें लेके आए। सपोज कीजिए इलेक्ट्रिसिटी का है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर वो कहते हैं कि आप सोलर सिस्टम लगा लीजिए फॉर द पंप, तो हर किसान उसको पंप को नहीं लगा सकता है, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट आगे स्कीम्स निकालती है कि इतने % आपको सब्सिडी देंगे तो आप लोग इसको लगाइए। तो इस तरीके की ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। सो अब जो अभी लास्ट 15 ईयर से या 14 ईयर से जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा फोकस कर रही है टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप और टुवर्ड द स्टार्टअप्स। तो ये स्टार्टअप्स और ये इनोवेशन किस तरीके से मिलके हम लोग जो है इसको आगे लेके जा सकते हैं। अगर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप मिलती है तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बिल्कुल एकदम से ही इंक्रीज होगी। द इन्वेंशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप आर द हार्ट ऑफ द नेशनल एडवांटेज। सो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले इस तरीके से ये इकोनॉमिक ग्रोथ थी और यहाँ पे जाके अगर ये दोनों चीजें मिलती हैं तो ये इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एकदम से इंक्रीज होती है। ये आगे पूरे के पूरे सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट सिस्टम है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट टू फार्मर है, उसके बाद में हमारे ये फार्मर टू कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट्स कैसे जाने हैं। तो ये पूरा का पूरा एक हमारा सिस्टम रहता है इसमें। सो दीज आर दी सेवरल एरियाज वेयर एग्रीकल्चर इनोवेशंस कैन अकर, और अभी हो भी रही है इसमें। एंड बायोटेक्नोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर, sustainable agriculture, vertical farming, robotics and automation. So these are the domains. तो इनकी एग्रीकल्चर से हमें बेनिफिट्स क्या होंगे अगर ये सारी हम चीजें लगाते हैं तो? एक फर्स्ट इज इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव द एफिशिएंसी, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एंड अडेप्शन टू द क्लाइमेट चेंजेस. So now come to this is just the introduction about the agriculture system and all. So now come from industry 4.2 to agriculture 4.0. So this is the historical evaluation of this. So as you can see in this diagram, first is this agriculture 1.0. Then agriculture 2.0, agriculture 3.0 and 4. अगर इसमें आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट जो है हमारा 1784 के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर जो टूल्स थे वो हम लोग मोस्टली मैनुअल वर्क करते थे, और इसमें जो टूल्स थे फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, इस तरीके के टूल्स को यूज करके हम लोग जो है खेती करते थे. उसके बाद में 1950 में जब मोस्टली हम लोग आजाद हुए उसके आसपास जो हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उस टाइम पे आया, और उसके अंदर फिर हमारी जो है इंडस्ट्री 2.0 जब आई तो इसमें जो मास प्रोडक्शन है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल, ये इनकी सबकी ये चीजें बनी. तो ये बनने के बाद में हमारे जो है ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सो दीज ऑल कम्स इन द दिस एग्रीकल्चर 2.0. And then in agriculture 3.0, the more focuses on the how we can collaborate this electronics into the your agriculture fields as well as into the agriculture equipments. So that is for the yield monitoring, guidance systems and variable rate applications. So these type of the electronics like sensors लगा दिए हमने, automatic motor on कर दी, off कर दी, और
इरिगेशन शेड्यूलर्स बना दिए, शेड्यूल कर दिया कि किस फसल को कितना पानी चाहिए। तो इस तरीके के सिस्टम्स जो थे हम लोगों ने डेवलप किए 1992 टू लेके 2017 के बीच में। बट 2017 के बीच में जब आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आना स्टार्ट हुआ और एआई आया, अब चैट जीपीटी, जेमिनी और रोज के रोज नए से नए जो हैं वो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं। सो फॉर दैट तो एग्रीकल्चर के अंदर हाउ वी कैन यूज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी फॉर दी, ताकि इसको स्मार्ट तो है ही अब एग्रीकल्चर, उसके बाद में इसकी प्रोडक्शन और यील्ड को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। सो दैट इज द ऑटोनोमस फार्मिंग, ट्रस्टवर्थी फूड सप्लाई, यूबिक्विटस एग्रीकल्चर एंड सेंसिंग। दिस इट कम्स अंडर द एग्रीकल्चर 4.0। सो फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल था, फिर मैकेनाइज हुआ एंड देन ऑटोमेटेड एंड नाउ इट इज इंटेलिजेंट। सो इंटेलिजेंट हम किसको बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो व्हाई इट इज आर्टिफिशियल? कौन बताएगा मेरे को? बताइए बच्चे, बताइए मैडम। हम लोग सब रोज तो बोलते हैं यहाँ यही लगी हुई है, यही लगी हुई है, तो बताइए। फॉर एग्जांपल सर चैट जीपीटी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उससे रिलेटेबल वो सारी चीजें बताता है हमें, फ्यूचर में भी उससे क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है। Okay, so that is the you are talking about the this chat GPT. So artificial intelligence means कि उस मशीन के अंदर या उस इक्विपमेंट के अंदर अपनी इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। आप उसको जिस तरीके से सिखाएंगे उसी तरीके से वो सीखेगा। तो आप उसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना रहे हैं। और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कैसे बनेगा? जब उसके पास पुरानी कुछ केस स्टडीज होंगी, वो पिछले कुछ काम किए हुए जो हैं उनसे वो सीखेगा। ठीक है, उनसे वो सीखेगा, सीखने के बाद में फिर वो काम करेगा। मीन्स कि ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। सो दैट्स व्हाई इन योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग क्या है, जब डाटा को यूज करते हैं, एक तो हमें डाटा चाहिए जिसमें कि बिग डाटा का कॉन्सेप्ट आता है कि हमें काफी सारा डाटा चाहिए उस सिस्टम को ट्रेन करने के लिए। और अबाउट 70% ऑफ द डाटा को हम यूज करते हैं फॉर ट्रेनिंग द सिस्टम एंड 30% ऑफ द डाटा जो है उसके ऊपर जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स हैं वो लगाने के लिए और उनके मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए। सो मींस कि हमने सिस्टम को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बनाना है। सो इसमें हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं। So one is the monocultural farming and another is the intensive animal farming। ये हमारे जो पहले हम लोग करते थे इस तरीके से। So इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। एंड लर्न द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। सो जैसे जैसे हम लोगों ने, जैसे आपका थर्ड फेज जो था या सेकंड फेज था, तो सेकंड फेज जो था ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमने बोला, तो इन द ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा जो चीजें बनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो बने हमारे फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, जिसमें कि आपका यूरिया आ गया, डाया आ गया और जितने केमिकल्स थे। उसके बाद में फिर क्योंकि ये हम लोगों ने आर्टिफिशियली बनाए ये सारे केमिकल्स सिंथेटिक, वो बनाने के बाद में प्रोडक्शन बढ़ी, एकदम से प्रोडक्शन बढ़ी। लेकिन उसने क्या किया कि हमारी सॉइल जो थी, सॉइल की डिग्रेडेशन शुरू हो गई और उसके बाद में उन्होंने केमिकल्स ने वाटर पोल्यूशन किया, सॉइल पोल्यूशन किया। वो पोल्यूशन करने के बाद में वो चीजें जो हैं अब वो सब्जियों में वो सारी की सारी चीजें आपकी फसलों के अंदर समा गई। सो दैट्स व्हाई कहते हैं कि आजकल प्योर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनिमल थे, एनिमल से हम लोग दूध लेते थे, उनको हम लोगों ने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए सो दैट कि ज्यादा दूध दे या जल्दी दूध दे, जो भी है। और वो जो इंजेक्शन हैं वो कितने ज्यादा हार्मफुल हैं। और आज हम लोग क्या है, मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से खा रहे हैं? केन्ड फूड खा रहे हैं। तो केन्ड फूड खा रहे हैं वो कहते हैं उसमें क्या प्रिजर्वेटिव भी डाले हुए ना, तो प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा केमिकल है कि उसको सड़ने नहीं दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो है ये हमने लेसन लर्न किए हैं। और अब दोबारा से हमें क्या है, मोस्ट ऑफ दी अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी परचेज करने के लिए मॉल में या कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अगर किसी ने कोई चीज बेचनी है वो कहते हैं सर ये लीजिए, ये ऑर्गेनिक है, ये आपकी हेल्थ से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या ये है, और उसकी कॉस्ट जो है उससे 3 टाइम्स ज्यादा होगी ऑर्गेनिक की कॉस्ट। अभी लेटेस्ट जो है हम लोगों ने देखा दिल्ली में
दिल्ली में जो आपका AQI है वो 500-600 चला गया। अभी मैं दिल्ली जाके आया था, मिनिस्ट्री में हर रूम के अंदर आपका एयर प्यूरिफायर है। मतलब आगे हमें एयर भी जो है वो खरीद के सिलेंडर लेके ही चलना पड़ेगा अगर इसी तरीके से चला तो। सो नो डाउट कि प्रोडक्शन बढ़ानी है, बट एट द कॉस्ट ये नहीं कि इतना ज्यादा पोल्यूशन और ये सारी चीजें हों। सो इसके अंदर क्या है अब हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आनी है जिससे कि जो ये सारी सॉइल डिग्रेडेशन है और ये चीजें हैं ये ना हो, और हमारी जो है एनवायरनमेंट भी बचा रहे और प्रोडक्शन भी और यील्ड भी हमारी ज्यादा हो। सो ये कुछ सप्लाई चेन के अंदर इनएफिशिएंसीज हैं, तो इसकी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो ये इसी तरीके से हमने ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस कर ली हैं कि एग्रीकल्चर 1.0 के अंदर हमारे यूज ऑफ द हैंड टूल्स था और लेबर इंटेंसिव था, लोड एक्सटेंसिव था। एग्रीकल्चर 2.0 के अंदर ये चीजें थी। फीचर्स उसके ये थे कि मशीनरी फोर्स को हमने यूज किया। इन एग्रीकल्चर 3.0 जैसा कि मैं बताया आपको कि मोस्ट ऑफ द सीडर्स, स्प्रेयर्स और आपके डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ द बायो इकोनॉमी और इसकी तरफ हम लोग ज्यादा गए। उसके बाद में जेनेटिकली हमने कई ब्रीड्स भी और बनाई इसके अंदर, और एग्रीकल्चर 4.0 के अंदर जो है उसके अंदर हम लोग मोस्टली कवर कर रहे हैं डिजिटाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा, IoT, कनेक्टिविटी, लोकलाइजेशन, GPS जिसको हम लोग बोल देते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग, ऑटोमेशन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स। सो इसके अंदर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और कहां पे यूज कर सकते हैं। सो इसके रिलेटेड एक तो IoT है, ठीक है। IoT के अंदर क्या है आपका, जैसे आपने शगुइन करके आर्किटेक्चर है, तो इसके अंदर एक तो स्पेस के अंदर, एयर के अंदर, ग्राउंड के अंदर और अंडर स्पेस, ये एक इंटीग्रेटेड हम नेटवर्क बनाते हैं जिसके अंदर की वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे काफी सारे सेंसर्स लगे हुए हैं और कुछ ड्रोन्स हैं हमारे। तो ये सारा का सारा सिस्टम कैसे आपस में कम्युनिकेट करता है और इसका डाटा कलेक्शन होती है, और डाटा कलेक्शन के बाद में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स हैं उनको हम लगाते हैं, और लगाने के बाद में डिपेंडिंग अपॉन दी डिजायर्ड जो हम पाना चाहते हैं उस सिस्टम से, वो डिजायर्ड जो फंक्शनलिटी है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इसके अंदर काफी चैलेंजेस हैं, अलग अलग है। एक तो ये है कि सेंसर्स जो हम लगाते हैं उसकी रोबस्टनेस होनी चाहिए। उसके बाद में पावर सप्लाई हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए। गांव में अगर हम सोचते हैं एक सिस्टम बना दिया, तो वेदर वी कैन इम्प्लीमेंट दैट, डिप्लॉय दैट सिस्टम इनटू द विलेजेस में उतनी ज्यादा 24 आवर्स की सप्लाई है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें सोलर पे या किसी और सिस्टम्स के ऊपर जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो हैं, क्योंकि हर डिवाइसेस जो है वो अलग अलग आती हैं, तो वेदर इनके सबके आपस में प्रोटोकॉल जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में है रोबोटिक्स जो है, इसका काफी यूज है। सो अभी 1 by 1 जो है मैं आपको लेके चलता हूं, इसको हम स्किप कर देते हैं अभी इस टाइम के लिए। सो वी विल मोर फोकस ऑन द वर्क that we have done at the this CDEC. So थोड़ा सा IoT enabled technologies के बारे में बताऊंगा, इसका आर्किटेक्चर, एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं अभी तक, और जो CDEC मोहाली ने 4.0 की तरफ जाने के लिए जो ये रेवोल्यूशन है IoT का और AI का, उसके लिए हम लोगों ने वहां पे प्रैक्टिकल काम क्या किया है इन CDEC। सो IoT क्या है? IoT ecosystem for the smart agriculture based on the 3 main components. First is the IoT devices, another is the communication technology, and third is the data process and storage solutions. तो ये जो 3 systems हैं, ये हमारे हैं IoT का system. So IoT ecosystem के अंदर अगर आप देख रहे होंगे नीचे, first is the monitoring farming environment based on the IoT devices. So इसमें आपके सर्विलेंस सिस्टम्स आ सकते हैं। बाय द यूज ऑफ द कैमरास वी कैन यूज द सर्विलेंसेस। तो सर्विलेंस में क्या है कि अगर एनिमल्स वगैरह आ रहे हैं उसके लिए है, और इवन सम ऑफ द डिजीजेस कैन आल्सो बी डिटेक्टेड बाय दिस सर्विलेंस कैमरास। एंड आपके जो पेस्ट वगैरह हैं, अगर शाम को वो ज्यादा आते हैं या किसी तरीके के पेस्ट वगैरह हैं,
तो उसके ऊपर भी हम लोग अगर डाटा हमारे पास स्ट्रीम आ रही है तो उसके ऊपर एल्गोरिथम्स लगा के हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं उसको. एंड देन द सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स, एयर ह्यूमिडिटी सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स एंड अल्ट्रावायलेट सेंसर्स. So as we can see, these are the different type of the sensors. No doubt electronics, computer science, artificial intelligence domains are required for this smart agriculture. But along with that, without the agriculture specialist और जो agriculture के scientist हैं, उनके बगैर हम लोग काम नहीं कर पाते हैं. Even in the CDAC, when we propose some of the projects related to this agriculture, we always consult the agri scientist. अब कोई फसल के बारे में है, सपोज के वीट के रिलेटेड हमने कोई सोल्यूशन बनाना है या कोई इरिगेशन शेड्यूलर बनाना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस खेत में कितना पानी देना है किस क्रॉप के लिए. इसी तरीके से अगर आपका कोई गैस सेंसर हम लोग लगा के कोई चीज बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज कहां पे होगा इन द एग्रीकल्चर. सो नाउ अ डेज जो डोमेन्स हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. मतलब आप एक डिसिप्लिन में या एक ब्रांच में रह के काम नहीं कर सकते हैं. सो इसीलिए बाय कीपिंग इन द माइंड द सेम थिंग इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इट इज इम्प्लीमेंटेड कि आप कभी भी किसी भी डोमेन से जाके किसी डोमेन के अंदर आगे जाके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द ब्रिजिंग कोर्सेज. एंड आफ्टर दैट द सेकंड इज द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. So in the communication technologies, we use the various networks like Wi-Fi, NB-IoT or LoRa networks, and Zigbee also we can use for the small distances to establish the reliable, secure and robust communication between the cloud and the farm. अब करना क्या है हमने कि यहाँ से हमें डाटा लेके यहाँ तक जाना है और यहाँ पे ले जाके थ्रू दिस कम्युनिकेशन यहाँ पे डाटा जो है स्टोर हो जाएगा. सपोज कीजिए मैंने डेवलप किया था हम लोगों ने इरिगेशन शेड्यूलर. इरिगेशन क्या होता है कि खेतों में पानी देना. ठीक है, तो खेतों में पानी देने के लिए हर फसल के लिए अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट होगी. तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो था एम्बेड कर दिया इन द सॉइल और अलग अलग लोकेशंस के ऊपर. सपोज कीजिए हमने ऐसे क्यारियां बनाई हुई हैं तो लास्ट में एक सेंसर लगा दिया कि पानी इधर से जाएगा तो वहां पे जाके वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ वहां तक मॉइस्चर पहुंच गया. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि वो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं. और एक तो ये है कि आपने उसी टाइम मोटर को ऑन कर दिया या ऑफ कर दिया, दैट इज कि उसका है. लेकिन वही चीज अगर हमें ये देखना है कि अगली गर्मियों में पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होगी या अगली सर्दियों में हमें पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हमें क्या है कि पूरा पूरा डाटा यहाँ पे कलेक्ट होना चाहिए. डिपेंडिंग अपॉन दी जो प्रीवियस डाटाज हैं उसके बेसिस के हम लोग बेसिस पे हम लोग जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन है वो कर सकते हैं. सो ये सारा का सारा डाटा यहाँ स्टोर हो जाएगा. एंड देन डाटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस. सो दीज आर दी डाटा प्रोसेसिंग. डाटा प्रोसेसिंग ये होती है तब रिक्वायर्ड है जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के उसके बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन ले रहे हैं. आपको कोई डिसीजन लेना है, मोटर को ऑन करना है, ऑफ करना है, तो वो सारी चीजें वहां से आपकी कंट्रोल होंगी. सो इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आ जाता है आगे कि हमें इसके अंदर प्रोसेसर्स कौन से चूज करने हैं, एनर्जी मॉड्यूल्स कौन से चूज करने हैं. तो जो हम लोग खेतों में लगाते हैं छोटे छोटे सर्किट्स जो जिससे कि सेंसर्स कोई जो वैल्यू है, अगर वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो चीज मेजर कर रहे हैं उसको वहां तक सेंड करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं नोड्स, दैट आर कॉल्ड नोड्स. और नोड से हम लोग डाटा लेते हैं. ऊपर हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम होता है और एम्बेडेड सिस्टम जो है हमारा आगे भेजता है क्लाउड के ऊपर. ठीक है, so these are the various type of the sensors that we used in this IoT. That is vibration sensor, vision sensor, motion sensors, chemical sensor, temperature, humidity, and these are the various sensors. So इसका आर्किटेक्चर मैंने बताया आपको. So उसके बाद में ये है कि हमारे पास जो बिग डाटा है, जब हमने कहा ये भी तो मैंने सिर्फ आपको मॉइस्चर का ही दिया कि वाटर का डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बिग डाटा क्योंकि बेस्ड ऑन दैट डाटा वी कैन मेक अवर सिस्टम इंटेलिजेंट. सो अब फार्मिंग के अंदर या खेतों के अंदर किस तरीके का डाटा हो सकता है. सबसे पहले है फार्म का डाटा, उसके बाद में है कंज्यूमर का डाटा कि किस कंज्यूमर को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड का डाटा
कि पिछली बार गन्ने की खेती हुई थी तो इतनी खेत में से कितनी फसल निकली थी और कितनी उसकी क्वालिटी क्या थी, एंड आफ्टर दैट पेस्टिसाइड्स एंड आपके फर्टिलाइजर्स का डाटा, पेस्ट का डाटा एंड डिजीजेस का डाटा. सो अभी जो जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इन द एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है, दैट इज मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन द दिस डिजीज डिटेक्शन. अगर आपके भी कुछ स्टूडेंट्स ने या आपके भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ द यही है कि डिजीज डिटेक्ट कर लो. सो उसका डाटा, लेकिन ये डाटा बेसेस अभी तक हमारे इंडिया में अभी तक गवर्नमेंट के पास उतने बड़े डाटा बेसेस नहीं हैं कि हम लोग जो भी रिसर्चर्स हैं उसके ऊपर काम करके वो करें. लेकिन अब धीरे धीरे अभी सीडैक के अंदर भी, हमारे मोहाली के अंदर भी अभी एक प्रपोजल है कि हम लोगों ने एक जो है डाटा सेंटर बनाना है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर दिस सेमीकंडक्टर. इसी तरीके से एक डाटा सेंटर जो होगा पर्टिकुलरली वो बनेगा एग्रीकल्चर के लिए, कि जितने ऑल ओवर इंडिया लोग रिसर्च करेंगे, अगर पोटैटो के फील्ड का डाटा है तो आप अपना लॉगिन बनाएंगे और अपना पोटैटो का डाटा जो पूरा का पूरा 6 महीने का वहां पे अपलोड करेंगे, सो दैट कि आने वाले टाइम के अंदर लोग उस पे बेसिस पे रिसर्च करके कुछ डिसीजंस ले सकें. सॉइल का डाटा है एंड सीड्स का डाटा. सो दीज ऑल आर दी कम्स अंडर दी बिग डाटा. सो IoT की वेरियस एप्लीकेशंस हैं इन द दिस एग्रीकल्चर फार्मिंग. सो UAV फार्मिंग हम लोग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग फार्मिंग एंड एक्वाफोनिक्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फॉरेस्ट बाय यूजिंग दिस, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके बाद में प्रिसीजन फार्मिंग. सो ये सारे का सारा आर्किटेक्चर है फॉर द IoT. ठीक है जी. उसके बाद में हम लोग आते हैं कि सीडैक की क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर 4.0. सो सीडैक में हम लोग क्या काम कर रहे हैं ताकि जो 4.0 का टारगेट है वो हम अचीव कर सकें. सो सबसे पहले है, अभी हम लोगों ने लेटेस्ट एक वर्क कर रहे हैं दैट इज ऑन द इलेक्ट्रॉनिक नोज. सो इलेक्ट्रॉनिक नोज क्या है? ये जो अभी मैंने आपको बताया कि 4.0 के अंदर क्या है कि वी आर मेकिंग द सिस्टम्स इंटेलिजेंट. हम लोग सिस्टम्स को इंटेलिजेंट बना रहे हैं. सो दिस प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय द हमें जो इसकी फंडिंग मिली है दैट इज बाय द IIT मंडी. तो IIT मंडी ने हमें ये फंडिंग करी है. सो इलेक्ट्रॉनिक नोज के अंदर क्या है? इट इज अ सेंसरी डिवाइस डिजाइन टू मिमिक द ऑल्फैक्टरी कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन, एनिमल and used to detecting and identifying the various orders and the volatile compounds. तो नोज क्या करता है हमारा? स्मेल. सो आपका जो नोज है वो, उसको कैसे पता लगता है कि ये स्मेल है, ये खुशबू है, ये खाने की स्मेल है, ये बर्गर की स्मेल है, ये किस चीज की स्मेल है? कैसे पता चलता है? कहाँ पे होती है सेंसिंग? इंटेलिजेंट सिस्टम ऐसा काम करता है हमारा पहले से डाटा अवेलेबल है. कहाँ पे है? हमारे यहाँ पे कहाँ है? ब्रेन में अवेलेबल है सर. ब्रेन में है, न्यूरॉन्स में है. गुड, ठीक है. सो सेंसर कहाँ पे है? वो तो डाटा हो गया ना, यहाँ पे तो डाटा है जो प्रोसेसिंग करता है. ये तो हमारा प्रोसेसर है. सेंसर कहाँ है? हमारे नोज में. सो नोज में हमारे पास क्या होता है कि एक ऑल फैक्ट्री, इसके मैं दिखाता हूं आपको, इस टाइप से. ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक नोज की. इलेक्ट्रॉनिक नोज इज एन इंटेलिजेंट सेंसिंग सिस्टम दैट यूटिलाइज ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक केमिकल सेंसर्स with overlapping the selectivity and appropriate pattern recognition system and capable of recognizing the simple or the complex orders. And if we can say this is a AI based, अगर इसको देखना है, an AI integrated eNose is an sensor that collects the chemical signatures that is called VOC, volatile organic compounds, and process them through the machine learning algorithms such as artificial neural network or PCA, SVM to recognize and classify the order or the contamination sources. So this is the definition of the electronic nose. So why do we need the electronic nose? Electronic nose हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि कई जगह ऐसी हैं
कि हम लोग जहां पे डायरेक्टली खुद उससे नहीं कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या कई चीजें ऐसी हैं जिसको कि हमारा नोज भी क्लासीफाई नहीं करता है। एक इसका फीचर्स ये हैं कि डिटेक्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्डर मिक्सचर्स, और 24/7 विदाउट फटीग एंड एडेप्शन ये वर्क कर सकता है। फास्ट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, पोर्टेबल, कॉस्ट इफेक्टिव। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस। सो दिस इज द एनालॉजी बिटवीन अवर nose and the electronic nose. So you can see in our nose there is a olfactory system. So यहाँ पे जहाँ पे हमारे olfactory hairs होते हैं, nose के अंदर आपके hairs होते हैं, इसके नीचे ही हमारे ये olfactory bulbs होते हैं। जो हमारे hairs हैं, hairs के नीचे जाके एक छोटे छोटे इनके sensors हैं हमारे लगे हुए। So that are called olfactory bulbs. So these are olfactory bulbs जो है ये हमारे सेंसर हैं, और आगे olfactory ये पूरा का पूरा सिस्टम है, और वो सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को। तो ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा एक हमारा डाटाबेस है, और पूरा का पूरा एक डाटा सेट है जो कि उसको डिफरेंशिएट करता है कि ये क्या चीज है। तो बेस्ड ऑन दैट कि हमारी ये जो अंदर जा रही है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। जो हमारे नाक के अंदर जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, और भी कई गैसेस हैं, जो कि अगर खाना रखा हुआ है तो खाने की स्मेल के साथ में कुछ जा रहा है, तो वो डिफरेंशिएट करता है वेदर इट्स अ लेमन, बर्गर, और ये कोई ड्रिंक है, तो उसको वो डिफरेंशिएट करता है। इसी तरीके से फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ गैस सेंसर्स ले लेते हैं। सपोज कीजिए अल्कोहल सेंसर आता है, मीथेन सेंसर है, उसके बाद में हमारा नाइट्रोजन सेंसर है। इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ सेंसर जो हैं, गैस सेंसर्स आते हैं। बाय मेकिंग द अरे ऑफ द सेंसर्स, हम उसका एक अरे बना देंगे। उन अरे से हम लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर अल्कोहल सेंसर है वो अल्कोहल का डाटा देगा, नाइट्रोजन सेंसर है वो नाइट्रोजन का डाटा देता रहेगा। वो सारा का सारा डाटा जो है आपका हम कलेक्ट करते रहेंगे। कलेक्ट करने के बाद में उसके ऊपर हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये क्या चीज है। मोस्टली हम लोग इस केसेस में पीसीए लगाते हैं, और हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक नोज बनाया है दैट इज टू डिटेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंटेंट इन द सॉइल। हम लोगों ने पहले एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें कि हम लोगों ने एनपीके एनालाइजर बनाया था। अभी तक जो आप लोगों में से कई लोग किसान होंगे और आपको पता होगा कि जब हम सॉइल टेस्ट कराते हैं तो सॉइल हाउ यू विल गो फॉर द सॉइल टेस्टिंग। मोस्टली खेत में 5 जगह से मिट्टी लेते हैं, उनको मिलाते हैं, मिलाने के बाद में उसके 5 सैंपल्स फिर से कर लेते हैं। उसमें से एक सैंपल उठा के हम लोग उसको 100 ग्राम जो सॉइल होती है वो लेके केवीकेस किसान विकास केंद्र और जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है वहां पे जाते हैं और वो टेस्टिंग करके देते हैं। सो व्हाट द प्रोसीजर दे फॉलो फॉर द सॉइल टेस्टिंग इज आइदर अ क्रोमेटोग्राफी और अनदर मेथड इज अ केमिकल प्रोसेस। एक पूसा ने पहले किट बनाई थी जिसमें कि पूरा का पूरा इतना बड़ा डब्बा देते थे, उसमें काफी सारे केमिकल्स थे और पूरा मैनुअल था कि अगर आपको ये इसमें ये इतना केमिकल डालोगे, ये डालोगे तो टेस्ट ट्यूब का कलर ये हो जाएगा, तो वो आपका क्या होगा कि इसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, अगर कोई और हो जाएगा तो उसका इसमें फॉस्फोरस ज्यादा है। वो एक मेथड पहले। हमने क्या किया इन 2016 उस मेथड को पूरे के पूरे को हम लेके आए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर। हमने क्या किया, केमिकल्स उसी तरीके से एक एग्रीनेक्स कंपनी है, उसका एक कैप्सूल आता है, उस कैप्सूल को हम उसमें डालते हैं, मिट्टी ले लेते हैं, मिट्टी को मिलाते हैं उसके अंदर और एक पिविट के अंदर लेके हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लिया, वो पिविट उसके अंदर डाल देते थे, उसके अंदर से लाइट पास करते थे। जब उसके अंदर से लाइट पास होती थी, अगर उसका लाइट का कलर जो आगे है कलरीमीटर से हम डिटेक्ट कर लेते, डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ दैट लाइट हम डिटेक्ट कर रहे थे कि इसके अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या पैरामीटर, जो कि हम पहले केमिकल प्रोसेस से कर रहे थे। तो हमने वो मीटर बनाया एंड आफ्टर दैट हम लोग जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गए, हमने उनको बताया कि ये चीजें हैं हमने बनाई हैं। तो मोस्ट हमारे यहाँ पे जो इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है अभी वो ये है कि हम लोग ये इंडस्ट्री 4.0 है या एग्रीकल्चर 4.0, व्हाई वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दिस। फर्स्ट जो बिगेस्ट कारण है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारे खेत हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब हमारे पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसे किलो में ही होता है, ज्यादा जमीन है। ऐसा नहीं है कि 200 एकड़ 400 एकड़ ऐसे इकट्ठे इकट्ठे खेत हो। अगर आपने यूएवी लगा के उसका डाटा कलेक्ट करना है तो 1 एकड़ में क्या करोगे, यहां से आएगा ऐसे घूमेगा फिर आ जाएगा, वो उतने से उसका क्या करोगे और उसकी कॉस्ट जो होगी काफी ज्यादा होगी। जहां पर
लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़े और टेक्नोलॉजी को यूज करके आप लेबर कॉस्ट कम कर सके, वहां पे इसका फायदा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो किसान है हमारे, दे डोंट वांट टू अडेप्ट दीज टेक्नोलॉजीज। इट मे बी ड्यू टू द कॉस्ट और ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजंस। तो उसकी जो अडेप्ट करना है वो है। तो वहां पे हमें एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि आपने क्या बनाया? मैंने कहा ये ऐसे करके बता देगा नाइट्रोजन फास्फोरस ये है वो कहते फिर इसमें क्या है? कहते मिट्टी का रंग लाओ, मैं तुम्हें सूंघ के बता दूंगा क्या होता है। वो सूंघ के बता देते हैं, कहते जब गिली होती है मिट्टी उसकी ये खुशबू है, इसका मतलब ये डाल दो इसमें, अगर ये है तो ये डाल दो। नहीं तो कहते रंग देख के बता देते हैं हम तो इसमें, कि मिट्टी का रंग देख के बता देते हैं कि क्या इसमें डलना चाहिए, किसकी कमी हो रही। तो मतलब ये सारी की सारी जो उनका डाटाबेस है या उनका एक्सपीरियंस है वो आगे शिफ्ट कैसे होगा। तो हमने फिर आगे दोबारा रिसर्च शुरू करी, तो हमने ये देखा कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक नोजेस ऐसे हैं जो कि सूंघ के बता देते हैं, जैसा कि उन्होंने बोला था। मतलब हम सूंघ के भी मिट्टी में से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें किस चीज की कमी है। तो हमने फिर उसको, क्योंकि भी ऑर्गेनिक का ट्रेंड है, तो हमने ये प्रपोजल दिया था IIT मंडी में, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और अभी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक नोज है उसको हमने पेटेंट कराया है, उसका डिजाइन पेटेंट कराया है। पेटेंट कराने के बाद में अभी टेक्नोलॉजी हमने पूरी की पूरी डेवलप कर ली और अभी यहाँ पे एक हमारा एग्जीबिशन लगा था, वहां पे हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया सक्सेसफुली। सो अभी आगे मैं दिखाता हूँ मेरा इलेक्ट्रॉनिक नोज जो है। सो ये जो आपका है, ये हो गई हमारी एनालॉजी। एनालॉजी के अंदर जो हमारे नाक है उसमें है आपका ह्यूमन कंपोनेंट्स ये हैं, और वहां पे हमारा सैंपलिंग इनलेट रहता है। यहाँ पे हमारे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर सेल्स रहते हैं और यहाँ पे हमारा सेंसर अरे रहता है। ऑल फैक्ट्री बल्ब्स की जगह पे हमारा सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। ब्रेन की जगह पे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स रहते हैं। एंड मेमोरी की जगह पे हमारा डाटाबेसेस फॉर द रेफरेंसेस ऑफ द सिग्नेचर। ठीक है जी, ये इसके डायग्राम है, ये हमारे इसके पार्ट्स हैं। तो इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा और हम इसको कहां पे यूज कर सकते हैं? फॉर द दिस ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कि जहां से धुआं बाहर निकलता है तो वहां पे हम देख सकते हैं कौन कौन सी गैसेस बाहर जा रही हैं। फायर अलार्म्स की जगह पे यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद में आपका हेल्थ मॉनिटरिंग के अंदर अभी काफी ज्यादा यूज होने शुरू हो गया। काफी जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो लोग इसके ऊपर ले रहे हैं कि हम लोग जब खांसते हैं तो खांसने से भी कुछ ना कुछ गैसेस बाहर आती हैं, तो उससे आपकी लंग्स की कंडीशन, उससे आपकी जो भी हैं अंदर किस तरीके की गैसेस हैं या वो है, उससे वो बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इसी तरीके से पब्लिक सेफ्टी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। सो एक प्रोजेक्ट है अभी जो मेरा चल रहा है, दैट इज द स्टडी ऑफ द AI ड्रिवन सॉल्यूशंस इन द एग्रीकल्चर, ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्टस। सो दिस इज अ स्टडी प्रोजेक्ट फंडेड बाय द DSIR। तो DSIR ने ये कहा कि इससे पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया था यूज ऑफ द AI इन द हेल्थ केयर, कि एक्चुअल में इंडिया में हेल्थ केयर के अंदर क्या AI की जरूरत है, या वैसे ही हम हर चीज में बोलते हैं AI बेस बना दिया, AI लगा दिया। आजकल AC आते हैं उसमें कहते हैं AI बेस, AI वाला ये हमारा AC जो है इसमें AI लगी हुई है। अब AC में AI क्या लगाया आप लोग? क्या वो आपका कॉन्टिन्यूसली डाटा ले रहा है? क्या उसे पता है कि ये डॉक्टर बलविंदर सिंह है, वो इतने से इतने टेम्परेचर में रहते हैं? अगर कल को मैं आऊं, आप अंदर आके ऑन हूं, तो उसी के ऊपर वो हो जाए, शुरू में ज्यादा हो फिर उसी टेम्परेचर के ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाए, चाहे मैं रिमोट उठाऊं ना उठाऊं। बट ऐसा नहीं है। कुछ ये AI का नाम लेके मार्केटिंग स्टंट भी हो गए हैं, सो दैट की प्रोडक्ट्स को एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाती है। सो फॉर दैट पर्पसेस गवर्नमेंट ने ये फंडिंग करी है कि आपको ये देखना है कि AI इसमें लगा के क्या कोई फायदा है या नहीं है, या कितने लोग अभी तक इसको यूज कर रहे हैं और कितनी गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग की है। सो फॉर दैट, जैसे हमने हेल्थ केयर में किया था, बेस्ड ऑन दैट हमें दोबारा ये प्रोजेक्ट दिया इन द एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर हम लोगों ने काफी वर्कशॉप्स करी हैं और ऑल ओवर इंडिया अबाउट 30 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में मिले हैं लोगों से। हमारा एक क्या कहते हैं क्वेश्चनरी बनाई है, जो कि हमारे साइंटिस्ट हैं और इससे में वर्क करते हैं AI से रिलेटेड एग्रीकल्चर में। तो वो हमने सारा का सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करके उसकी एक रिपोर्ट बनाई है अभी 300 पेज की, वो हम मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे, सो दैट बेस्ड ऑन दैट दे कैन टेक द
डिसीजंस की आगे फंडिंग किस तरीके से करनी है और लोगों ने कितना काम किया है, और एक कलेक्शन ऑफ डाटा भी हो जाता है कि हाँ इतने लोग इसमें काम अभी तक कर रहे हैं। एंड ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक नोज का आर्किटेक्चर है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है इसमें हमने नंबर ऑफ सेंसर्स बनाए हैं। ये सॉइल है, इसको सॉइल के ऊपर रख देते हैं और यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है। जो फैन क्या करता है, एयर को सक करता है, कुछ देर तक एयर इसके अंदर रहती है और ये सेंसर जो है अपनी वैल्यू ले लेते हैं और वो डाटा जो है एम्बेडेड हार्डवेयर के थ्रू हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू अपना सेव कर लेते हैं, आइदर ऑन द सिस्टम और आइदर ऑन द क्लाउड। तो उसके ऊपर हम लोग PCA, CNN ये सारे एल्गोरिथम्स लगा के हमने सिस्टम को ट्रेन कर रखा है। लेकिन अब जब ट्रेन हो गया हमारा सिस्टम, अब जब भी हम वो लेके जाते हैं उसको लगाते हैं कहीं पे, तो वहां पे हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में और डैशबोर्ड के अंदर आ जाता है कि इसके अंदर ये वैल्यू इसी सेंसर की इतनी वैल्यू आ रही है। और लास्ट में हम जो रिकमेंडेशन है फार्मर को वो हम ये देते हैं कि इस सॉइल के अंदर इस चीज की कमी है और इतना ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। ये जो आप पीछे उस तरफ देख रहे होंगे ये गोल सा डब्बा, वो हमारा एक यूनिक डिजाइन पेटेंट है और ये पूरा का पूरा हमारा एक यूटिलिटी पेटेंट है। तो इसी तरीके से ये हमारे एक एमटेक के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया और हमने अभी ये प्रोजेक्ट आगे फर्दर फंडिंग के लिए भी डाला हुआ है। दैट इज IoT बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिगेशन सिस्टम। सो इसमें क्या है कि फर्टिगेशन होता है कि फर्टिलाइजर्स को हमने सप्लाई करना है प्लांट्स तक बाय यूजिंग द इरिगेशन। मतलब यूरिया को ऐसे छिड़कना नहीं है, हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, जो वेस्ट है, पत्ते हैं, खाना है, ये चीजें हैं, इसको अगर आप यूज कर लेते हो, एक डब्बों में डाल देते हो, डब्बों में डालने के बाद उसका एक यूरिया बन जाता है। लेकिन अब ये डब्बे जो आप 3 देख रहे होंगे, ये तीनों डब्बे एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के हिसाब से हमने लगाए हैं और इसके ऊपर एक लिस्ट लगाई हुई है कि जो किचन वेस्ट होगा वो उसके हिसाब से इसमें डालेंगे कि इसके अंदर आपने मूली डालनी है, इसके अंदर जो खीरे हैं या वो इसमें डालना है, रोटियां इसमें डालनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, किसमें फास्फोरस ज्यादा होता है, तो उसमें वो डब्बे में ज्यादा हो जाएगा। और आगे फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा रखा है जो कि ये डिटेक्ट करता है कि इसमें नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, पोटेशियम की और इनकी वैल्यूज कितनी है। और आगे हम लोग ड्रिप इरिगेशन को यूज करके, ड्रिप इरिगेशन होता है कि पाइप से पानी जाता है और उसके अंदर छेद किए होते हैं, ड्रॉप गिरता है, तो उसके थ्रू जब हम पानी देते हैं और उसके थ्रू ये यूरिया, ये जो हमारी खाद है वो भी उसके थ्रू ही हम वहां पे भेज देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फर्टिगेशन सिस्टम। मतलब फर्टिलाइजर दे रहे हैं इरिगेशन से। तो अब अगर इरिगेशन आप नॉर्मली कर रहे हो, फ्लड इरिगेशन होती है जैसे हम लोग ये उसमें आड़ों में पानी देते हैं ना, कि खुला पानी छोड़ देते हैं वहां तक जाता है, उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा हो। लेकिन हाँ, चावल के लिए और गेहूं के लिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स के लिए ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, पाइप होता है, जहां जहां पे प्लांट है वहां पे एक बूंद गिरती है। तो इसके ऊपर हमने जब रिसर्च करके देखी थी तो हमने ये पाया कि अबाउट 70% ऑफ द वाटर वी कैन सेव बाय यूजिंग द ड्रिप इरिगेशन एंड ऑटोमेटेड इरिगेशन। 70% ऑफ द वाटर हम सेव कर सकते हैं। उससे इलेक्ट्रिसिटी कितनी सेव होती है, हमने इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल की कॉस्टिंग बूस्टिंग करके देखा कि इस सिस्टम को 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर ये फ्री हो जाता है। इतनी सेविंग हमारी बिजली से हो जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द सेंसर्स। तो इसी तरीके से एक स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने की वर्चुअल फार्म फील्ड फेंसिंग करी थी। इसमें लेजर बीम लगा के, लेजर बीम के साथ में ये डिटेक्ट करते हैं कि कोई जानवर उसको क्रॉस तो नहीं कर रहा है या इस तरीके का है। अगर ये कर रहा है तो उससे ये अल्ट्रासोनिक जो साउंड्स हैं वो क्रिएट करते हैं और वो जानवर जो है वो इरिटेट होकर वहां से चले जाते हैं। तो ये डाटा कलेक्ट करके उसके बाद में इसके रिजल्ट्स हैं। और दिस इज दी ऑटोमेटेड हाइड्रोफोनिक्स। ये हाइड्रोफोनिक्स जो है ये हमने नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ पे शूरनी यूनिवर्सिटी में और कम से कम 10 to 20 लोकेशंस के ऊपर हमने इसको लगाया है। ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो हमने खुद डिजाइन किया है। यहाँ पे सीडेक में डॉक्टर मनदीप हैं, यहाँ पे वो काम करते हैं। और ये हमारा सोलर के अंदर जो लगा हुआ है, इसमें क्या होता है कि आपको हाइड्रोफोनिक्स है, मीन्स कि हम लोग कोई मिट्टी नहीं यूज करते हैं इसके अंदर। ये ग्रीन हाउसेस के अंदर या ओपन में भी अगर आपने करना है तो गलीज के थ्रू वाटर जाता है और इसके अंदर आप देख रहे होंगे गलीज के अंदर हमने प्लांट लगाए हैं। मोस्ट ऑफ दी फ्लावर्स की फसल और आपकी वेजिटेबल्स जो है इसके अंदर हम उगा सकते हैं। और ये एक जो मॉडल है हमारा सीडेक मोहाली में हमने लगाया हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो पानी जाता है, सेम जैसे हमने फर्टिगेशन देखा, फर्टिगेशन के थ्रू ही पानी जाता है। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हम इसके थ्रू देते हैं और करने के बाद में इस टैंक से वापस आ जाता है। और इसकी वैल्यू जो है
वो कॉन्टिन्यूसली हमें मॉनिटर करनी पड़ती है कि क्या वैल्यू इसकी प्रेजेंटली है, उसके अकॉर्डिंग कितना ऐड करना है, वो सारे का सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। एंड अनदर प्रोसेस, एक प्रोजेक्ट जो हमने किया है दैट इज द एक्वाफोनिक्स। ये हमने लुधियाना में लगाया हुआ है, गढ़वासू में। सो ये इसमें क्या होता है, एक्वाफोनिक्स, मतलब कि हम इसमें मछली भी पाल रहे हैं और हाइड्रोफोनिक्स भी लगा रहे हैं। इसमें क्या है, इसका जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको इंटीग्रेट किया था, तो उन्होंने टैग दिया था कि मच्छी की मच्छी और फसल भी अच्छी। तो इसका मतलब ये है कि जो फिशेस होती हैं, जो फिशेस का एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटा ऑफ द फिशेस कंटेन द हाई कंटेंट ऑफ द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इसकी बजाय कि हम केमिकली उसमें लगाएं, तो इसका एक्सक्रीटा जो होता है, मछलियों का जो गंद होता है, वो हम लोग ले जाते हैं पाइप्स के थ्रू, इनमें वो फसल को दे देते हैं, और फिर दोबारा यहाँ से पानी जो आता है वो मोस्टली ये कंज्यूम कर लेते हैं नाइट्रोजन, और उसके बाद में फिर बायोफिल्टर्स में आता है। बायोफिल्टर्स से करने के बाद में दोबारा हम उसको पानी को उसी को रीयूज कर लेते हैं यहाँ। लेकिन हाँ, जब यहाँ से ये वापस जा रहा है, हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कितना है, सो दैट कि जो हमारी मछलियाँ हैं उनको जो ऑक्सीजन चाहिए, जो जो उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, वो पूरे के पूरे उसमें है कि नहीं। तो इस तरीके से दो खेतियां जो हैं वो हम एक ही पानी से ले सकते हैं बाय यूजिंग द एक्वाफोनिक्स टेक्नोलॉजीज। सो एक प्रोजेक्ट हमने ये एप्पल इंस्टीट्यूट शिमला के साथ में किया था टू डिटेक्ट द यील्ड एस्टिमेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो इसमें हमने इसके डिजीज डिटेक्शंस भी किए थे, और उसके बाद में यूएवी को यूज करके हमने ये पूरा का पूरा डाटा जो था वो कलेक्ट किया था। तो इसमें हमारे पास वीडियो स्ट्रीम्स आ जाती हैं, तो वीडियो स्ट्रीम से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर कोई डिजीज तो नहीं लगी है। अगर डिजीज लगी है तो उसका हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंग उसका स्प्रे जो है वो भी यूएवी से कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी यील्ड एस्टिमेशन ऑफ द एप्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जब फसल पकती है ना, सारी की सारी एक साथ पक जाती है। सो हमें सप्लाई चेन जो अपनी है वो उसके हिसाब से रेडी रखनी पड़ती है। सप्लाई चेन मीन्स कि हमें ट्रक्स हैं और ये सारी चीजें, कई बार आपने देखा होगा कि शिमला से आते हो सारे ट्रक फंस जाते हैं, वहां बर्फ पड़ जाती है, वो सारे के सारे वहीं फसल सड़ जाती है। तो वो जो सप्लाई चेन है, तुड़वाई कैसे करवानी है, वो सारा का सारा प्लान कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज। सो नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक सॉइल विजन। जैसे मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक हम स्मेल करके कर रहे हैं। मेरी एक पीएचडी स्टूडेंट है जो कि काम कर रही है कंप्यूटर विजन के ऊपर। तो कंप्यूटर विजन में क्या है, वो सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उससे हम लोग डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदर सॉइल इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, इसके ऊपर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है हमारा। दैट इज द कैटल आइडेंटिफिकेशन एल्गोरिथम थ्रू द बायोमेट्रिक मजल्स पैटर्न। अब हम लोगों के सबके आधार कार्ड हैं, और अभी जो गवर्नमेंट है उसमें मोर टुवर्ड्स द काउज एंड ऑल हैं। सो इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो जानवर हैं उनके भी आधार कार्ड बनने चाहिए, पशु आधार। सो पशु आधार कैसे बनेगा, उसकी क्या चीज आप डिटेक्ट करोगे जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। हमारी तो फिंगर्स हैं, आईज हैं, तो अभी क्या है, इनकी एक मजल होता है, मतलब ये नाक के पास की जो जगह होती है ना, इसके ऊपर लाइनें लगी होती हैं, आप देख पा रहे हो उधर जो नोज है, नोज वाले एरिया को और फेस को हमने डिटेक्ट करना है। उसमें आइडेंटिफाई करेंगे वेदर इट इज काउ, बफेलो, कौन सा एनिमल है, और बेस्ड ऑन देयर मसल्स हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी ब्रीड क्या है, इसकी एज क्या है, और वो सारी चीजें। सो दिस इज अनदर। तो ये मैंने आपको बताया जो हमने एनपीके एनालाइजर बनाया था, वो सिस्टम है। इसी तरीके से सीडेक कलकत्ता, सीडेक हैदराबाद जो है एग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वन बाय वन बेसिस स्किप करूंगा। एक हमने पोर्टेबल कंप्यूटर बेस्ड राइस क्वालिटी एनालाइजर बनाया है। उसके बाद में है ये हमारा एडीसी डिटेक्शन ऑफ द वाटर। इसमें हम लोग वाटर की क्वालिटी को डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है। ये स्मार्ट फार्मिंग के लिए है कि जो फार्म है हमारा उसमें सॉइल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट कितने हैं। नेक्स्ट एक हमारी एप्लीकेशन है दैट इज समाधान। दिस इज द रॉबोट है इसमें। तो इसमें जब हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रे करते हैं ना इसमें फील्ड्स में पेस्टिसाइड्स, तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है, काफी सारा पेस्टिसाइड जो है वो उनके फार्मर्स के अंदर चला जाता है, उससे लंग्स की डिजीज हो जाती है और श्रिंक कर जाते हैं लंग्स। तो ये जो है ऑटोमेटेड स्प्रे कर देता है, रोबोटिक है, और इसको हम प्लान कर सकते हैं यूएवी की तरह, उसका मैप बना के, मतलब जो कहते हैं पाथ मैप।
इसी तरीके से जैसे हमने ई नोज बनाया है, सीडे कलकत्ता ने ई टंग बनाई है टू करेक्टराइज द टी, कि टी के स्वाद किस किस तरीके के होते हैं, और चाय की क्वालिटी को अलग अलग करने के लिए कि ये हाई क्वालिटी की है, इसमें क्या क्वालिटी है, इसकी क्या है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए एक हमने ई टंग बनाई है। उसके ऊपर चाय बनाने के बाद में उसके ऊपर एक ड्रॉप गिराया जाता है, ये इस तरीके का सिस्टम है, यहाँ से आके और ये आगे उसको हम लोग चेक करते हैं। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर जो है हम लोग काफी सारे काम करते हैं, और ये कुछ हमारे स्टार्टअप्स हैं जो कि 4.0 की तरफ ले जाने में हमें हेल्प कर रहे हैं इन द इंडिया। ये एक मित्रा है, नासिक बेस्ड स्टार्टअप है। दिस इज द रिसोर्सेज टू इम्प्रूव द मैकेनिज्म एंड हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के अंदर, और उसके बाद में क्रॉप इन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, ये एक ऐप है। इसी तरीके से प्लांटेक्स एक ऐप है, अगर आप लोग कुछ लोग ट्राई करना चाहते हैं एआई बेस्ड कोई सिस्टम, तो एक प्लांटेक्स के नाम से ऐप आती है। वो प्लांटेक्स ऐप से अगर आप जाएंगे किसी भी प्लांट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा कौन सा प्लांट है, और अगर उसके ऊपर कोई पत्ता किसी ने खाया हुआ है या कोई डिजीज है तो आपको डिजीज बता देगा क्या है, और नेक्स्ट उसकी रेमेडीज भी आ जाएगी। सो दिस इज द 4.0 एग्रीकल्चर 4.0। अब गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द फंडिंग ये कर रही है कि आपको वो सॉल्यूशंस लेके आने हैं मार्केट में जो कि किसानों के डायरेक्ट यूज करें। सो इसी तरीके से ये गुजरात में से इकोसिस्टम ये है हमारा, और ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी है कि हम लोग जो ये करते हैं ना, ग्रीन हाउसेज होते हैं तो उसमें ये फ्लाइज वगैरह और ये आ जाती हैं, तो ये इन्होंने इस तरीके से एक लगा दिया मैट सा, तो उसके अंदर ये पूरी चिपक जाती हैं मक्खियाँ वगैरह, और फ्लाई पेस्ट स्टिकी शीट है ये। तो इस तरीके के जो हैं काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है, और मोस्टली अब क्या है कि स्टार्टअप्स जो हैं वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस 4.0 और 5.0, कि जहां जिसकी तरफ की हमें एग्रीकल्चर को लेके जाना है, सो दैट कि जो चैलेंजेस हैं अभी गवर्नमेंट के पास, और आने वाले 25 ईयर्स के अंदर 50 ईयर्स के अंदर जो हमारे पास चैलेंजेस हैं कि हम ऑर्गेनिक फूड विदाउट पेस्टिसाइड किस तरीके से बनाएंगे और पैदा करेंगे, वो सारे के सारे एक चैलेंजेस हैं। और किस तरीके से हमें मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ ये नहीं है इंटेलिजेंट बनाना है तो वो हमारे लिए ही कल को प्रॉब्लम्स हो जाए। और जब उसका नाम ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा है तो वो हमेशा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनेगी, वो आपके ब्रेन से आगे नहीं जाएगी। हो सकता है एक इंडिविजुअल के ब्रेन से आगे हो, आपको लगता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो सोचा ही नहीं था, लेकिन वही है कि उसको जितना जितना डाटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेन होगा। और आप क्या सोच रहे हैं कि ये जितनी जेमिनी है, गूगल आपको फ्री को कुछ चीज देगा? गूगल ने कुछ फ्री का दिया अभी तक, या कोई देगा आपको फ्री की चीज? आपको पता होगा जब आपने जीमेल करी थी आज से कब, 2001 में मैं बीटेक कर रहा था एनआईटी में, तब हमने जीमेल और ये याहू वाले अकाउंट बनाए थे। एट दैट टाइम हमने बना लिए, हाँ ठीक है, उसके बाद में हमारा डाटा उसी में पड़ा हुआ है। धीरे 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 गूगल ड्राइव भी दे दी, हमने सारा डाटा उस पर चलाना शुरू कर दिया, सारा डाटा उस पर सेव्ड है। जैसे 15 GB हुई, लाओ पैसे, 50 रुपये 150 रुपया पर मंथ, 150 रुपया पर मंथ इनटू इंडिया में कितने लोग यूज कर रहे हैं? अब वो या तो तुम डाटा उठा के अपनी हार्ड डिस्क में डालो, फिर बंदा सोचता है यार कितनी हार्ड डिस्क ले लूंगा, खरीद लो यार 50 रुपये ही है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय कितने करोड़। इसी तरीके से अभी आप लोगों को पूरी आदत डाली जाएगी कि आप सोचना बंद कर दें, आप लेटर लिखना बंद कर दें, एक एप्लीकेशन लिखनी है। इवन हम लोग भी ऑफिसेज में यही कर रहे हैं अब कि, और जो हमारे क्लरिकल स्टाफ है वो और इजी हो गया है, और कई बार हम लोग पढ़ते भी नहीं है कि मतलब बन क्या रहा है। सो मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना है, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि हम लोग खुद जो है बिल्कुल ही सोचना बंद कर दें। अभी 2-2 साल 1.5 साल के लिए सबने ये जो जितने प्लेटफॉर्म्स है सारे फ्री कर दिए हैं। उसका रीजन यही है कि उनको सारे के सारे जो आइडियाज हैं वो कैप्चर करने, और मोस्टली आपने देखा होगा कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए इन्होंने फ्री किए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जितने प्रोजेक्ट आइडिया जितना आप सोच सकते हो वो सिर्फ आप सोच सकते हो सकता है मैं भी नहीं सोच सकता, आप जितने लोग बैठे हो सबके पास अलग अलग दिमाग है, अलग अलग तरीका है एक काम करने का। तो जब आपको क्लास में को प्रोजेक्ट दिया, आपने डाला उसमें, हाँ मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ, इस तरीके से, वो सारा इकट्ठा हो रहा है वहां पे, सब पता है उसे,
कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, और आप इतने डिपेंडेंट हो जाओगे कि आपको अपने बारे में उतना नहीं पता होगा जितना उसको पता होगा। सो दिस इज ऑल कि हमें कहाँ पे बचना है, कहाँ पे करना है। इन द मेडिकल में भी जैसे हम लोग काम करते हैं, तो मेडिकल में अभी तक यही है कि हमें डॉक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स बना के देने हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है एज पर द पॉलिसीज वो हमेशा डॉक्टर लेगा। हमें डॉक्टर की हेल्प करनी है, तो उस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर आप सेंसर को बनाने की टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक सीमॉस टेक्नोलॉजी है, मेम्स बेस्ड बनते हैं, सीमॉस बेस्ड बनते हैं, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल बेस के अंदर ये है कि कुछ उसके अंदर फ्यूम्स या कुछ जाके उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बैठते हैं, फिर उस पर रिएक्शन होती है, उसका डाइलेक्ट्रिक या कुछ चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता है। ये हमारे पास है some participants from other colleges and Okay. Central University के research scholar. Okay. How they can work with you, collaboration में वो थोड़ा सा ओके, सो एक्चुअली सीडेक में देखिए ये है, अभी जो प्रोजेक्ट चलते हैं, एक तो मैंने आपको स्कीम बताई है अभी, ठीक है, वर्क बेस्ड लर्निंग की है। तो अगर कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या ये लोग हैं, तो ये जस्ट अपने कॉलेज के थ्रू हमें एक लेटर भेज सकते हैं किसी साइंटिस्ट के नाम से कि हमें इनके साथ में काम करना है। सो वो हमारे पास आके 6 महीने के लिए, साल के लिए, जितने के लिए हमारे लैब की एसेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। और अभी अगर कोई बच्चे VLSI में हैं या सेमीकंडक्टर में हैं, काम करना चाहते हैं, तो अभी फॉर 5 इयर्स जो इंडस्ट्री बेस्ड टूल्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं थ्रू चिप टू स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। उसमें हमारे पास ये इंडस्ट्री बेस्ड टूल्स हैं, उसकी एक की सब्सक्रिप्शन जो है कम से 20-25 लाख 1 ईयर की है, तो हमारे पास 5 इयर्स के लिए है। तो वो फैसिलिटीज जो भी बच्चा लेना चाहते हैं, इवन अगर बीटेक के या एमटेक के स्टूडेंट शॉर्ट टर्म कोर्स या ट्रेनिंग करना चाहते हैं, VLSI में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे, क्योंकि वो कोर्सेज मेरे पास हैं, वो ट्रेनिंग्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। बाकी कुछ जो हमारी पेड ट्रेनिंग्स में वो ज़्यादा नहीं है, 3, 4, 5 हज़ार तक ऐसे ही है कॉस्ट। हाँ, साइबर सिक्योरिटी में भी हमारे पास कोर्सेज हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से पेड होंगे, 5,000 to 7,000 के बीच में। फॉर PhD हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, मतलब R&D लैब हैं फॉर CSIO, मतलब CSIO जो है उनकी एक यूनिवर्सिटी है ACSIR, वो डिग्री अवार्ड करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ में हम लोग हैं, PTU के साथ में। और इसके अलावा भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी है या आपका कॉलेज कोई है, जैसे सपोज कीजिए आपका ये इंस्टीट्यूशन PTU के अंडर है या ऑटोनोमस? अच्छा, MRS PTU के अंदर, तो MRS PTU में आप एनरोल कर लीजिए, कोवाइड वहाँ से एक बना लीजिए, तो वहाँ पे आके काम कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम फॉर द PhD। सर आपने कहा था सर 90s में सुपर कंप्यूटर हम बनाए थे, 2nd नंबर हमको मिला था जो भी कॉन्फ्रेंस था उसमें, तो सर उस पर कोई स्टार्टअप का ये हुआ था सर? या नहीं, स्टार्टअप नहीं हो तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था ना। अब इसमें ना प्रोजेक्ट्स का भी डिफरेंट टाइप का होता है। एक होता है गवर्नमेंट मिशंस होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, ये गवर्नमेंट का है। अभी AI मिशन आया है कि AI को हमें हर किसी को बताना है, हर किसी को समझाना है उसका अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है। गवर्नमेंट उसके ऊपर मेरे ख्याल से पता नहीं कितने करोड़ है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी भी आपको भी देखा होगा AI की जो है हैकाथॉन्स काफी ज्यादा करवा रही हैं पूरे इंडिया में। तो वो सारी चीजें वही हैं कि गवर्नमेंट का मिशन क्या है, जो गवर्नमेंट मिशन के अंदर लेके आती है वो गवर्नमेंट का मिशन होता है। जो अगर आपको स्टार्टअप आइडिया है फॉर द सुपर कंप्यूटिंग, उसमें तो यही है कि आप सीडेक से कुछ सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज लेके या उनके मार्केटिंग एजेंट बन जाइए, कि आप कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी के बीच में इंटरफेस बन जाइए। लेकिन वो आपको प्रपोजल जो है वो वहाँ पे देना पड़ेगा, हमारे थ्रू नहीं होगा, पुणे में देना पड़ेगा। तो अभी जो है अगर आप लोग सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज, कुछ लोग हैं अगर AI के ऊपर वर्क कर रहे हैं या कुछ है, तो आप CDEC.in के ऊपर जाके या गूगल में सर्च कर सकते हैं कि हम जो CDEC की सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज है वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो परम समृद्धि और परम किसी इस नाम से सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज हैं। उसमें क्या है कि पर आर के हिसाब से आप जो है उसका चार्ज होता है, और आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, 1 ईयर की ले लीजिए आप। तो अभी कल परसों मैंने उसकी कैलकुलेशंस कराई थी, तो अबाउट 10,000 पड़ता है अगर आप नॉर्मल मशीन की लेते हैं। लेकिन नॉर्मल मशीन भी आपके कंप्यूटर से कम भी 100 गुना ज़्यादा फास्ट चलेगा। लेकिन अगर आपको GPUs या वो चाहिए तो मेरे ख्याल से 43 रुपीज़ है पर आवर
43 पर इंटू 24 कर लीजिए और इतने महीने के लिए साल के लिए लेना वो देख लीजिए। वो मोस्टली कॉलेजेस लेते हैं। कॉलेजेस क्या करते हैं, 1 या 2 सीट्स ले लेते हैं, यहाँ पे लैब में रख दिया। जिस बच्चे को करना है वो अपना टाइम फिक्स कराता रहे कि ये अगले 2 घंटे मेरे को चाहिए, अगले 2 घंटे मेरे को चाहिए, अगले 2 घंटे। लेकिन उसमें ये होता है जो आपके 10 दिन लगने हैं ना कैलकुलेशन के लिए, वहाँ पे 1 घंटे में हो जाना। मॉडल्स तो तभी ट्रेंड होंगे ना जब फास्ट चलेगा, डाटा काफ़ी होगा, तो उस तरीके से है। सर आपने ई नोट्स का बताया था, तो वैसे ही अगर कोई बहुत सारी गैसेज हैं जिसका परसेंटेज तो पता चल जाता है ऐसे, लेकिन हमको सेपरेट करना चाहिए, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब मान लीजिए कि कोई जैसे हम बोले जैसे हाइड्रोजन अलग निकलना चाहिए, मीथेन अलग निकलना चाहिए, वो फिर सर वो फर्नेसेस नहीं होगा, मतलब फर्नेसेस के अंदर जाके वो फिर वो प्रोसेसेस ही हैं कि उसके किसी के साथ रिएक्शन करा दो, वो निकाल दो, दूसरी रिएक्शन कर दो, निकाल दो। मुझे कंबाइंड गैस है निकल रही है बहुत सारी है, नहीं प्यूरीफाई तो करते हैं यहाँ। किसी अगर सपोज करो एक पर्टिकुलर गैस है, 10 गैसेज हैं, उसमें से आपको एक पर्टिकुलर गैस प्यूरीफाई करनी है। नहीं हम सेपरेट करना चाहते हैं, प्यूरीफाई नहीं करना चाहते। सेपरेट के लिए मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में अभी तक, तो मैंने क्योंकि मेरा काम डिटेक्शन तक का ही था तो हमने डिटेक्शन करके छोड़ दिया। सर जैसे कि बठिंडा में अभी मैं 1-1.5 साल से रह रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 मेजरली प्रॉब्लम देखते हैं जो कि फार्मिंग से आते हैं। अभी AQI जो है बठिंडा का वो अप्रॉक्स 300 के एक AQI AQI ओके, तो वो अप्रॉक्स 300 के करीब जो कि है गार्डा से। तो ये जो है लाइक पराली जो होता है उसको डिकम्पोज करता है फार्मर्स, उससे इस मंथ में जो नवंबर और दिसंबर होता है वो पीक लेवल पे AQI रहता है। तो सर जो पराली है उसको डिकम्पोज करने के लिए आप लोग के पास कोई सॉल्यूशन है जो ये ज़्यादा पॉल्यूशन भी ना करे? और हाँ देखिए इसमें ना गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव हैं, लेकिन एज सच कहें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ऐसा हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी वाइज तो अभी नहीं बना रहे हैं। अभी तो उस गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी की स्कीम से निकाली है कि इनको इकट्ठा करो और इनको काट के आप लोग इनको दो, थर्मल प्लांट में दो या कहीं और दो। तो उस तरीके की स्कीम जो हैं गवर्नमेंट ने निकाली हैं। अभी पीछे मैं अभी एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में गया था, तो उनका वो लगा था, टेक्निकल फेयर लगा था। तो टेक्निकल फेयर के अंदर मैंने देखा है कि पराली को यूज़ करके जो आपकी पैकेजिंग होती है ना आजकल, जैसे आप इससे अमेजोन से या यहाँ से कुछ सामान मंगाते हैं तो वो पैकेजिंग गत्ते की होती है मोस्टली। एक तो गत्ता ही बन जाता है पराली से, ठीक है, एक वो भी उसका यूज़ करता है, लेकिन गत्ता भी कितना बनाएंगे। तो उसमें क्या है, पराली का यूज़ करके और एक और किसी और मटेरियल को यूज़ करके, मतलब पूरी पराली उसमें गलती नहीं है, जस्ट उसको शेप दे दी जाती है वैसी, जैसा आपका सामान पैक करना है वैसे उसको शेप दे दी जाती है। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स के साथ में मेरे ख्याल से हो सकता है। और अगर आप गलने की बात करें या वो करें तो उसमें तो फिर वही है कि आप काट के उसको या तो कहीं डंप कीजिए या उसको गलाइए, फिर उस तरीके की प्रोसेस है। और दूसरा प्रॉब्लम जैसे देख रहा था कि जो यहाँ का ग्राउंड वाटर है उसमें कैंसर बहुत सारे रिसर्च होता है, तो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए ऐसे डिवाइस में कैंसर जो होता है वाटर में मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं अलग अलग मेजर करना पड़ता है, उसको कंबाइनिंग कोई सेंसर कोई डिवाइस मेजर करे, ऐसा कोई डिवाइस है नहीं अभी अभी तक मेरे ख्याल से नहीं है ऐसा कोई डिवाइस। तो लेकिन वाटर टेस्टिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वही वाटर टेस्टिंग इक्विपमेंट्स ही हम लोग उसको मोस्टली वो सर लाइक अलग अलग मेजर करना पड़ता है जैसे। देखिए मेरा कहना ये है कि जो सेंसर्स है ना वो आपको डिटेक्ट करके बता देंगे, लेकिन उसको कम कैसे करना है मेन तो वो क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले तो ये देखिए कि हुआ क्यों। सर इसका एक वन ऑफ द मेजर रीजन जो है बताया गया था मुझे, एक पेस्टिसाइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा फार्मर्स यूज़ करते हैं, वो लाइक जब इरिगेशन होता तो पेस्टिसाइड्स के इसी एरिया में ज़्यादा यूज़ करते हैं। नहीं लाइक यहाँ पे जो बताया गया था रिसर्च में, तो वन ऑफ द रीज़न बताया गया था पेस्टिसाइड्स जो है फार्मर्स यूज़ करते हैं, उसके कारण ग्राउंड वाटर में भी कैंसर्स पाया। देखिए सेंसर्स के ऊपर काफ़ी वर्क चलता है, इवन कि जो वाटर की क्वालिटी है उसको देखने के लिए नंबर ऑफ सेंसर्स हैं, तो उसको आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। उसकी pH वैल्यू है और कई पैरामीटर्स हैं जिनको करके डिटेक्शन करते हैं।
लेकिन पर्टिकुलरली कैंसर के लिए ही हैं, वो तो हैवी मेटल्स हैं, जो हैवी मेटल्स होंगे वो कैंसरियस होते हैं, तो उसको डिटेक्शन उसी तरीके से करते हैं। मेनली ये है कॉज कि उसको रोकना कैसे है। रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या है, अवेयरनेस ही है। अगर आज आप लोग सोच रहे हैं कि हमने इस यहाँ की सॉइल को ऑर्गेनिक बनाना है, तो उसको बनाने के लिए अगले 10 साल लगेंगे कम से कम। हो सकता है इस बार आपने वो छिड़काव नहीं किया, सारा कीड़ा खा गया, सेकंड टाइम नहीं किया, कीड़ा खा गया, थर्ड टाइम हुआ, उसमें फिर और गोबर डाला, ये डाला, तो उसको अडेप्ट करने के लिए जो सॉइल है उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और आजकल तो ये कह रहे हैं कि वो सब्जी लीजिए जिसमें कीड़े लगे हुए हैं। पहले ये कहते थे लोग कि वो पत्ते मत खाओ जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, इसमें तो कीड़ा लगा हुआ है, ये नहीं खाना। आजकल कहते हैं अगर पत्ते कीड़े लगे हुए हैं ना उसमें और वो खा रहे हैं तो बचे हुए कीड़े, अगर गोभी में सुंडियां हैं तो मतलब ये है कि इसके ऊपर पेस्टिसाइड नहीं डाला। ठीक है, धो लो उसको, कर लो, बना लो, वो ठीक है, लेकिन पेस्टिसाइड तो नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ जी।